All right, let's start with genetics and behavior now. So, basically, our body is made up of cells. ठीक है? Can you hear me? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So, our body is made up of cell, and each of our cell has chromosomes. ठीक है? These chromosomes, as you can see, they are spiral kind of structures. ऐसे spiral होते हैं, entangled. ठीक है? Now you can see two strands. Each strand is entangled in the other strand. इन strands के बीच में इस तरह से bonds होते हैं. Bonds of A, T, C and G. A is adenine, T is thymine, C is cytosine and G is guanine, which is not important for you. I'm just telling you. So ये जो A, T, C, G हैं, ये आपस में combinations बनाते हैं. ठीक है? This is known as a DNA. ठीक है? इसमें जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जीन्स क्या होंगे. ठीक है? एज यू कैन सी ये जो आपके बॉन्ड्स हैं एटीसीजी के, ये हमारे अलग अलग जीन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ सर्टेन टाइप की क्वालिटीज होती हैं, कुछ पर्सनालिटीज होती हैं. वी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग. सो यू कैन सी एक आपके टूथ के साइज का दिया हुआ है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए म्यूजिक का है, आई कलर है, हार्ट रेट है, स्पेक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे. ऑल ऑफ दिस इज डिसाइडेड बाय जीन्स ओनली. ठीक है? So the first term that we have in genetics and behavior is heredity. Heredity means biologically determined characteristics that are passed from parents to the offsprings. So parents से ऑफस्प्रिंग में पास होने वाले ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं, दिस इज नोन एज हेरिडिटी. ठीक है? सो इफ आई हैव डायबिटीज एंड डायबिटीज हैज बीन रनिंग इन माय फैमिली, देन आई प्रोबेबली हैव डायबिटीज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. ठीक है? आई हैव इनहेरिटेड डायबिटीज फ्रॉम माय फैमिली. द सेकेंड इज chromosomes. Chromosomes are thread-like structures that contain the genetic material. So you can see, as I said, there are two threads and they are entangled together. ठीक है? सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और इन्हीं जेनेटिक मटेरियल की वजह से वी इनहेरिट सम क्वालिटी, सम कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज जेनेटिक Success. These thread-like structures contain genetic material and it is found in nearly every cell of the body. So each and every cell of our body has certain chromosomes. ठीक है? Now what are genes? Genes हमारे DNA के segments हैं. ठीक है? These are segments of the DNA that serve as the biological blueprint. ये biological blueprint बनाते हैं हमारा. ठीक है? सो हमारे अंदर कौन कौन से जीन्स हैं वो सब मिलकर के एक ब्लूप्रिंट बना करके देख रहे हैं कि अवनी ऐसी होगी या अर्पिता इस टाइप की होगी, सलोनी इस टाइप की होगी. ठीक है? एंड दे शेप डेवलपमेंट एंड ऑल द बॉडीली बेसिक बॉडीली प्रोसेसेस. हमारे बॉडीली प्रोसेसेस, हमारा डेवलपमेंट, हमारी पर्सनालिटी, एवरीथिंग इज because of these genes. We are predisposed to some qualities, some characteristics because of the genetic blueprint that we have. Now, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में there are 23 pairs of chromosomes. ठीक है? We have a total of 23 pairs of chromosomes. ठीक है? इन 23 में से 22 आर ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स आर ऑटोसोम्स एज इन कि ये हमारा या तो कोई मतलब कोई एक पेयर होगा जो आपका हेयर टाइप बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा. सो सबका कुछ ना कुछ रोल होता है. देयर आर ऑटोसोम्स.
but there is just one pair, the last 23rd pair, which is not an autosome. This particular pair is actually a sex chromosome, also known as an allosome. सो ये जो एलोसोम्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका जेंडर क्या होगा. What sex a person will have is determined by this 23rd pair of chromosome. ठीक है. ये जो पेयर होता है ये या तो आपका एक्स वाई हो सकता है और इट कैन बी एक्स एक्स. If it is an XX, it means the person is a female. If it is XY, then it means that the person is a male. ठीक है. If you see, X is longer and Y is एक छोटा सा, थोड़ा Y X से हमारा छोटा होता है साइज में. ठीक है. These 23 pair of chromosomes work together to create the person we ultimately become. So whether we are a male or a female, what is the color of our hair, what is the color of our eyes, what kind of qualities we have, can we sing, can we dance, what our height will be, what our weight will be, what diseases we may have, all of this is determined by these 23 pairs of chromosomes. नाउ होता क्या है कि हमको कुछ चीजें अपने फादर्स से मिलती हैं, कुछ चीजें अपने बायोलॉजिकल मदर्स से मिलती हैं. ठीक है. सो फादर और मदर का यहाँ पर आपके नर्चरिंग फादर और मदर नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. सो आई वाज सेइंग कि हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल फादर एंड बायोलॉजिकल मदर, हमारे हमारे हम वी आर अ मिक्सचर ऑफ देम. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज, से फादर का एक्स वाई है. ठीक है. मदर का एक्स एक्स है. ठीक है. एज यू कैन सी दैट फादर के मान लो कोई एक प्रॉब्लम है, से डायबिटीज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द चांसेस कि जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इस कपल के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें ये डायबिटीज होगी या नहीं होगी. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि 4 केसेस हो सकते हैं. जिन 4 में से देयर आर 2 केसेस जिसमें डायबिटीज हो सकती है, एंड देयर आर 2 केसेस की डायबिटीज नहीं होगी, विच मेक्स इट अ 50-50%. हाउ दिस हैपेंस इज, से कि फादर का जो डायबिटीज कॉजिंग जीन है और मदर को तो डायबिटीज है नहीं, तो मदर का एक नॉर्मल जीन आ सकता है. ठीक है. विच मेक्स द चाइल्ड बेसिकली डायबिटिक. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि फादर का
नॉन डायबिटिक जीन आया है और मदर तो नॉन डायबिटिक है ही, ठीक है, तो बच्चे में ऑफस्प्रिंग में डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड केसेस, फादर का डायबिटिक बियरिंग जीन आया है, डायबिटीज बेयरिंग जीन आया और मदर इज नॉन डायबिटिक, तो डॉटर में आपके डायबिटीज हो सकता है। फोर्थ केसेस, फादर का नॉन डायबिटिक जीन आया है और mother is already non-diabetic, causing this person, this fourth offspring to be non-diabetic in nature, ठीक है। so as a result क्या हुआ, as you can see there is 2 kids that are diabetic and 2 kids that are non-diabetic, रेशियो क्या हो गया 2:2। अगर हम इसको कट करें तो रेशियो क्या आपका हो जाएगा 1:1, ठीक है, विच मेक्स इट अ 50% चांस कि आपका बच्चा डायबिटिक होगा एंड 50% चांस कि डायबिटिक नहीं होगा। ऑल राइट, नाउ वी हैव सम क्रोमोसोमल एनोमलीज। These chromosomal anomalies means कि आपके chromosomes में there is some problem, there is some genetic mutation because of which there are some problems in the child, ठीक है। So first we'll discuss male related genetic anomalies. मेल का हमारा जीनोटाइप क्या होता है, दिस इज नोन एज द जीनोटाइप, ओके। सो एक्स वाई इनका जीनोटाइप है, ठीक है, मेल्स का। एक केस क्या हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट हो गया है, तो जीन आपका क्या बन गया, एक्स जीनोटाइप आपका बन गया एक्स एक्स वाई, ठीक है। एक्स की एक, एक्स क्रोमोसोम की एक रेप्लिका आ गई है, causing the genotype to be XXY, ठीक है। Because there is a Y chromosome, the gender of this child will be male only. Another anomaly can be कि X भी replicate हो गया और Y भी replicate हो गया है, causing the child to be XXYY. अनदर थिंग कैन बी कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम है वो ट्रिपल टाइम्स आ गया है, कॉजिंग इट टू बी ट्रिपल एक्स वाई। ऑल ऑफ दीज जीनोटाइप्स cause the person, cause the individual to have a syndrome that is known as Klinefelter syndrome, ठीक है। फ्लेंटर्स सॉरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इट इज अ सिंड्रोम, इट इज अ प्रॉब्लम, जेनेटिक एनॉमलिटी दैट इज स्पेसिफिक टू मेल्स ओनली। फीमेल्स में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं होता, सिर्फ मेल्स में होता है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हेलो तनीषा, मैं क्लास ले रही थी। 5 o'clock ना, हाँ 5 o'clock तक आई बी फ्री, नो इशू, ठीक है, हाँ ओके ओके। ठीक है, सो इट कैन कॉज स्टेरिलिटी, small testicles, the size of the testicles of this particular individual will be small, and because you can see कि x repeat हो रहा है, सॉरी कोई भी हो तीनों में से, x या तो डुप्लीकेट हो रहा है या 3 बार आ गया है, बिकॉज x ज्यादा है तो थोड़े फीमेल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है इन दीज इंडिविजुअल्स दैट हैव क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Another male specific chromosomal anomaly is XYY, ठीक है। इसमें आपका एक्स वाई क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट हो रहा है बट एक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो फीमेल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है as सच कोई, ठीक है। द पर्सन इज नॉर्मल बट थोड़े से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है बिकॉज वाई क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया है। दिस इज नोन एज जैकब्स सिंड्रोम, ठीक है। Usually these person those people who have Jacob syndrome, they have usually normal characteristics only, as such कोई problem नहीं होती है, but थोड़े से taller than average हो सकते हैं, ठीक है, एवरेज से थोड़े ज्यादा लंबे हो सकते हैं,
थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है लर्निंग प्रॉब्लम्स का, कि लर्निंग प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं कोई, अगर ध्यान ना दिया जाए तो लर्निंग बेसिकली एक बच्चा जिसको बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही है तो हो सकता है जैकब सिंड्रोम होने के बाद भी उसको लर्निंग इश्यूज ना हो, बट अगर ध्यान नहीं रख रहे हो आप तो इनमें लर्निंग प्रॉब्लम डेवलप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्लस दे मे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एक्नेस। अदरवाइज दे आर नॉर्मल, इनकी फर्टिलिटी नॉर्मल रहती है, ठीक है, फर्टिलिटी में एज सच कोई इश्यूज नहीं होते इनके। नाउ वी हैव क्रोमोसोमल एनोमलीज दैट आर स्पेसिफिक टू फीमेल। ये होता है फर्स्ट वाला जो हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम इज XO। तो इनमें बेसिकली सेकेंड क्रोमोसोम है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है विच इज X। देर इज नो वाई, देर इज नो सेकेंड X, ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम X इज देयर, ठीक है। इनका जीनोटाइप फिर हम कैसे लिखते हैं, XO, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि अडोलेसेंस में प्यूबर्टी रीच होने के बाद भी सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते हैं, because of which there can be sterility. Usually, these people are sterile in nature, they cannot reproduce. Also, they have a very short stature. मतलब इनका जो हाइट होती है यूजुअली बहुत छोटे गट्टे नाटे से लोग होते हैं, ठीक है। द सेकेंड क्रोमोसोमल एनिमली इज ट्रिपल एक्स। सो एक्स आपका 2 की जगह 3 बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। यूजुअली इनका स्टैचर बहुत टॉल होता है, ज्यादा लंबे होते हैं, मतलब ज्यादा लंबी लड़कियां होती हैं एज कंपेयर टू एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स। लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं एंड अगेन इनकी भी फर्टिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। Now, some of the most common chromosomal abnormalities include डाउन सिंड्रोम विच इज ट्राइसमी 21। इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, इनमें आज सच कुछ मतलब आपके जो XY क्रोमोसोम है जरूरी नहीं है उन्हीं में प्रॉब्लम। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ये जेंडर रिलेटेड थे, ठीक है। इनमें जो आपका क्रोमोसोम 23 होता है सिर्फ उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। अब हम ऐसे एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी 23rd के सिवा बाकी किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज अ ट्राइसमी 21। जो आपका 21 क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऐड हो जाता है। ट्राइसमी मींस 3 आ गए हैं, सो जो 2 आपका क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जगह एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। सो देयर इज, इसको ऐसे बोला जाता है, अगर आपको डाउन सिंड्रोम या ट्राइसमी 21 की डेफिनेशन लिखनी हो तो ट्राइसमी 21 इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी where there is extra chromosomal या extra genetic material in chromosome 21, ठीक है। यूजुअली डाउन सिंड्रोम के बच्चों को आप देखकर ही पहचान सकते हो कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। यूजुअली इनका जो फेस होता है इनमें फेशियल एबनॉर्मेलिटीज ही आपको दिख सकती हैं। इनका जो नेजल ब्रिज होता है, नेजल ब्रिज एज इन टॉप ऑफ नोज जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। आईज आर almond शेप। दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑल्सो। इनका माउथ बहुत थोड़ा मतलब लिप्स जो होते हैं वो जॉइन प्रॉपर जॉइन नहीं हो पाते क्योंकि इनकी टंग प्रोट्रूडिंग होती है। प्रोट्रूडिंग एज इन जो इनकी टंग होती है, आपकी टंग में आगे थोड़ा सा पॉइंट टाइप का होता है ना, इनकी टंग पूरी प्रोट्रूडिंग होती है, बहुत थिक टंग होती है जिसकी वजह से ये लोग बोल भी नहीं पाते हैं बहुत क्लियरली। इनकी मतलब स्पीच प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं, बहुत क्लियर नहीं बोल पाते बिकॉज टंग इनकी नॉर्मल नहीं होती। ऑल्सो बिकॉज टंग इतनी प्रोट्रूडिंग होती है और लिप्स पूरी तरह बंद नहीं होते हैं तो दे सलाइवेट ऑल्सो। इनका बाहर सलाइवा यूजुअली बहुत गिरता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज आईडी होना इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ दो सिंड्रोम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। आप डाउन सिंड्रोम की इमेजेस सर्च करना, आई विल ऑल्सो शो यू। आप देखकर बता सकते हो, मतलब इनका फेस एक टिपिकल फेशियल फीचर्स होते हैं जिसको देख करके हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस इंसान को डाउन सिंड्रोम है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ अ किड हु हैज डाउन सिंड्रोम। So this is how the faces of
those with Down syndrome look like. ठीक है, this is the nasal bridge जो ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर से nose is flat, the eyes are always almond shaped. ठीक है, they have a protruding tongue also. प्रोट्रूटिंग टंग देखो ऐसी है इनकी, यूजुअली आपको टंग ऐसे बाहर निकली हुई दिखेगी. ठीक है, I'll show you the facial characteristics downscape. See, as you can see, the nasal bridge is flattened. The eyes are थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई eyes होती हैं, इनको हम typically almond shaped eyes बोलते हैं. Also they have a short neck. Neck इनकी बहुत short होती है. Ears are folded. ठीक है? These are the typical facial features of those who have Down syndrome. Another chromosomal abnormality is Edwards syndrome, where there is a trisomy of the chromosome 18. Chromosome 18 की trisomy होती है, उसमें extra material होता है. Plateau syndrome is when there is a trisomy in the 13th chromosome. Then there is Cry-du-Chat syndrome और 5p minus syndrome. 5p minus इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली जो क्रोमोसोम 5 होता है उसके शॉर्ट आर्म में पार्शियल डिलीशन है. सो अगर आपने क्रोमोसोम्स की अभी पीछे इमेज देखी होगी तो एक आपका लॉन्ग आर्म होता है और एक आपका शॉर्ट आर्म होता है. एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होता है और एक आर्म थोड़ा सा छोटा होता है. तो इनका जो क्रोमोसोम 5 होता है उसके शॉर्ट वाले आर्म में, छोटे वाले आर्म में थोड़ा सा हिस्सा डिलीटेड होता है. तो अगर ये इतना बड़ा है तो इतने की जगह हो सकता है थोड़ा सा और छोटा हो. सो देयर इज अ पार्शियल डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5. अनदर इज वोल्फ हिशॉन सिंड्रोम और डिलीशन 4C सिंड्रोम, 4p सिंड्रोम. सो इनमें भी जो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 है उसमें पार्शियल डिलीशन होता है. ठीक है, as we discussed, Down syndrome में there is an extra copy of chromosome 21. Plateau syndrome में there is an extra copy of chromosome 13. Edward syndrome में there is an extra copy of chromosome 18. Triple X syndrome is a disorder that is typically in females जहां पर एक X क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, 2 की जगह 3 X क्रोमोसोम्स होते हैं. टर्नर सिंड्रोम जिसमें X क्रोमोसोम फीमेल्स में एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है. सो इंस्टेड ऑफ 2 X chromosomes, there is only one X chromosome and the other X chromosome is missing, causing them to have the genotype XO. ठीक है, then there is Klinefelter syndrome that is typically in males. यहाँ पर X chromosome एक extra आ जाता है, causing their genotype to be XXY. Then there is XYY syndrome जिसमें एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम है मेल्स में, causing them to have the genotype of XYY. Another is Cry-du-Chat syndrome जहां पर आपका क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म में there is a partial deletion. Fragile X syndrome, हाँ, this is also important. Fragile X syndrome में क्या होता है, मेनली आपका इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के डुप्लीकेशंस तो होते ही हैं. यू कैन सी कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जैसे अगर इनका इस तरह से क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम का जो नीचे का आर्म होता है वो बहुत फ्रेजाइल सा होता है. फ्रेजाइल एज इन ये देखने में ऐसा लगता है, ऐसे करके फिर नीचे से बहुत, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे थोड़ा सा होगा नीचे से टूटा हुआ सा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम.
लास्ट इज एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया. इसमें देयर इज अ ट्रांसलोकेशन इन विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 22 इज मूव टू 9. सो 22 क्रोमोसोम का एक पार्ट मूव होकर चला जाता है आपका 9 में, क्रोमोसोम 9 में. ठीक है. These are the various chromosomal anomalies. Any questions regarding this? Any questions regarding this? अच्छा ओके, आपने चैट पे भेजा है, सॉरी मैंने नहीं देखा था. Now we have Huntington's disease, also known as HD. ये एक fatal genetic disorder है. Fatal means it can cause death also. It is a fatal genetic disorder that causes the progressive breakdown of nerve cells in the brain. So जिन लोगों को Huntington's disease होता है उनको genetic, मतलब it is genetic, कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. इसमें यूजुअली जो ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं उनका प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. सो धीरे धीरे उनके नर्व सेल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं. It deteriorates a person's physical and mental abilities. So starting में मतलब as they start growing इनके physical और mental abilities normal होती हैं, but धीरे धीरे फिर वो deteriorate होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. Usually during their prime working years and has no cure. So जो हमारे prime working years होते हैं which is around 21, 25, 30, ये जो हमारा time होता है usually इसमें इनकी physical और mental abilities धीरे धीरे deplete होना शुरू हो जाती हैं, and this particular disease has no cure because it is obviously genetic in nature. Then second that we have is phenylketonuria, also known as PKU. इन phenylketonuria it is an again innate problem होती है, genetic होती है, and it is an inborn error of metabolism that results in decreased metabolism. So PKU में क्या होता है, जिन लोगों को PKU होता है इनका metabolism बहुत decreased होता है, बहुत ही कम होता है. It is a birth defect that causes an amino acid called phenylalanine to build up in the body. तो आपकी बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जो आपकी बॉडी में बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है. इस बिल्डअप की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पीकेयू और फिनाइलकीटोनुरिया. अगर पीकेयू अनट्रीटेड रहे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, बचपन से ध्यान नहीं दिया जाए, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, इंसान को सीजर्स भी आ सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन अ मस्टी स्मेल एंड लाइटर स्किन. सो जिन लोग को पीकेयू होता है यूजुअली इनकी स्किन बहुत लाइट सी होती है एंड दे may also have a musty smell. Musty smell as in कोई चीज स्टेल हो जाती है ना तो उसमें से मिट्टी जैसी स्मेल आने लगती है, तो वैसी सी स्मेल इज मस्टी स्मेल. ठीक है. अब देखो, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन में देखो तो क्या होता है कि हमने खाने से प्रोटीन लिया और हमारी मसल से प्रोटीन जो आ रहा है ये सारा अमीनो एसिड्स में चेंज होता है. जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें फिनाइललाइन पर्टिकुलरली ये जो होता है फिनाइललाइन ये हाइड्रोक्सिलेज में चेंज होता है. ठीक है. एंड हाइड्रोक्सिलेज से फिर ये टायरोसिन में चेंज होता है. ठीक है. अब हो क्या रहा है, ऐसे लोग जिनको पीकेयू है उनका जो अमीनो एसिड जो पीएचई वाला अमीनो एसिड है फिनाइल एलानाइन वाला है ये इनका टायरोसिन में चेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच का ये जो हाइड्रोक्सिलेज है यहीं पर
ब्लॉकेज हो जा रहा है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो क्या हो रहा है, इनका ये जो पीएचई है ये बिल्डअप हो जाता है, देयर इज अ बिल्डअप ऑफ पीएचई which as a result causes all these problems that we discussed, intellectual disability, seizures, etc. ठीक है। अब जब हम जेनेटिक्स और बिहेवियर की बात करते हैं तो बहुत कॉमनली एक डिबेट चलती है नेचर की और नर्चर की। ठीक है, नेचर बोलता है कि हमारा नेचर हम लेकर पैदा होते हैं, वी आर born with a particular set of genes with a particular biological blueprint which determines what kind of a person we are. So हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारी एबिलिटीज, ये नेचुरली बाय नेचर हम में होती हैं। ठीक है। नर्चर बोलता है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे बिहेवियर्स को डिटरमाइन करते हैं। हमें नर्चर किया जाता है टू बिहेव इन अ सर्टेन वेज, सो इन अ सर्टेन वे। तो द वे वी बिहेव इन, द बिहेवियर, द पर्सनैलिटी वी हैव डेवलप्स in the environment that we live in. This is what nurture says. Now, nature says we genetically inherit physical traits from our parents, but we also inherit personality traits, intelligence, and preferences. नेचर क्या बोल रहा है कि फिजिकल ट्रेट्स लाइक आई कलर, हेयर कलर, हाइट, वेट, ये सब तो हम पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बिहेवियर, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सब कुछ भी हम इनहेरिट करते हैं। नाउ नर्चर सेज कि जो हमारा हाउस होल्ड है, जो हमारी सिटी है जिसमें हम रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमें रेज किया है, हमारे टीचर्स ने क्या सिखाया है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या कंपनी है हमारी, ये सब हमको चेंज करता है। ठीक है, दीज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन हु वी आर। अब नेचर की बात भी सही है, बिकॉज स्टडीज से हमें पता चलता है कि बहुत सारे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स पे गए हैं। ऐसा ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, यूजुअली ज्यादातर आप देखोगे कि उनके जो किड्स हैं उनमें भी बहुत गुस्सा होता है। ठीक है, सो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, जो बच्चे मैथ्स में जीनियस होते हैं उनके बच्चे भी मैथ्स में जीनियस होते हैं ज्यादातर। ठीक है, सो वी कैन सी दैट हाँ, थोड़ा तो जीन से आता है, बट देन नर्चर की, मतलब नर्चर के भी फेवर में हमें चीजें लगती हैं, क्योंकि कई बार ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस जिनको अलग अलग आपने अलग अलग इन्वायरमेंट में रेस किया है, उनकी पर्सनालिटी और प्रेफरेंसेस बहुत अलग होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल एक जैसा होता है, उनको एक को आप एक अलग हाउस होल्ड में रख दो और एक को बिल्कुल डिफरेंट हाउस होल्ड में रख दो, तो बड़े होकर दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के होंगे। तो अगर उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट एक जैसा है और जेनेटिक्स का इतना ही फर्क पड़ता है, तो फिर क्यों ये लोग अलग अलग हैं? सो नर्चर की बात भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है और नेचर की भी सही है। ठीक है, टुडे आज के टाइम में ये चीज एक्सेप्ट करी जाती है कि नेचर और नर्चर दोनों ही साथ में मिलकर हमें एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी देते हैं। सो वॉट एवर वी बिकम, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ टैंडम बिटवीन नेचर एंड नर्चर। ठीक है, एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है हमें दोनों का। अडॉप्शन और ट्विन स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि नेचर और नर्चर दोनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो इन्वायरमेंट जिसमें हमें बड़ा किया गया है, वो एक्चुअली हमारी उन पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजों को, उन उस इंटेलिजेंस को ट्रिगर करता है जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रीडिस्पोज थे। ठीक है, सो वी हैव अ जेनेटिक बेसिस फॉर एग्रेशन, बट इट गेट्स ट्रिगर्ड बाय द इन्वायरमेंट वी लिव इन। तो हो सकता है कि मेरे बिहेवियर, मेरे जेनेटिक्स में अग्रेशन हो बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर, बट अगर मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया है जहां पर सबने हमेशा काम रहना सिखाया है, तो मेरा ये जो जीन था अग्रेशन का, ये ट्रिगर नहीं हुआ। और सिमिलरली अगर मुझे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जहां हर चीज का आंसर लड़ाई से ही शुरू होता है, मतलब वायलेंस ही या लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना ही तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, तो प्रोबेबली मेरा ये जो अग्रेशन का जीन है ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, genetically identical people raised in different environments may exhibit different behavior because of this only. मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करूँगी।
So this is just an example of this, that Jennifer and Karen are identical twins, and दोनों ही मतलब because they have the same parents and they are genetically identical also, तो इनके genes में there is this problem that their body absorbs fat twice as fast as the average person. So average level पर हमारी body में जो fat absorb होता है, they are genetically predisposed कि इनके body में उससे डबल फैट अब्सॉर्ब होता है. ठीक है. नाउ दोनों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया. जेनिफर ईट्स हेल्दी एंड लो फैट फूड. वो हेल्दी ग्रीन वेजीज खाती है और लो फैट फूड खाती है. सो यू तो उसके ओबेसिटी के जीन्स ट्रिगर नहीं हुए एंड एज अ रिजल्ट शी इज वेरी हेल्दी. कैरन हमेशा फैटी अनहेल्दी फूड खाती है, तो उसके जो ओबेसिटी के जीन्स हैं वो ट्रिगर हो गए एंड शी एंड अप बीइंग वेरी फैट एंड ओबीज. अब हमारे पास देखो तीन इसमें, जब हम बिहेवियर जेनेटिक्स मतलब हम जब जेनेटिक्स और बिहेवियर की बात करते हैं, हमारे पास 3 फील्ड्स ऑफ स्टडी होती हैं. एक है बिहेवियर जेनेटिक्स, एक है न्यूरोजेनेटिक्स और एक है पर्सनालिटी न्यूरोसाइंस. सो जब हम जीन्स और ब्रेन के कोरिलेशन को पढ़ते हैं कि कैसे ब्रेन हमारा जीन्स पे डिपेंडेंट होता है और जीन्स ब्रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस फील्ड को कहते हैं न्यूरोजेनेटिक्स. वो फील्ड जिसमें हम पर्सनालिटी और ब्रेन को पढ़ रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी न्यूरोसाइंस, और यू कैन ऑल्सो से न्यूरोसाइकोलॉजी. ठीक है. जब हम जीन्स और पर्सनालिटी को साथ में पढ़ते हैं, जीन्स का पर्सनालिटी पे असर पड़ते हैं, दैट इज नोन एज बिहेवियर जेनेटिक्स. तो बिहेवियरल जेनेटिक्स बेसिकली ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन कि हमारी एबिलिटीज, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हमारी सोशियबिलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे क्या हमारे पेरेंट्स से ही हम इनहेरिट करते हैं और वी लर्न देम. ठीक है. इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करती है बिहेवियरल जेनेटिक्स. तो अगर एक मान लो बच्चा इज अडॉप्टेड, तो इस बच्चे का जो भी बिहेवियर होगा, जो भी पर्सनालिटी होगी, वो इस चीज पर बेस्ड होगी कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स किस टाइप के हैं और उसके ओरिजिनल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो किस तरह के हैं. सो इस बच्चे में 25% होगा बायोलॉजिकल मदर, 25% बायोलॉजिकल फादर, 25% अडॉप्टिव मदर, 25% अडॉप्टेड फादर. ऐसे करके इसका एक फुल ऑन कॉम्बिनेशन होगा दिस अडॉप्टेड चाइल्ड. ओके. इन अडॉप्शन स्टडीज ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस जिनको अलग अलग फैमिली में रेस किया है, उससे हमें नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में इंसाइट मिलती है. क्योंकि बच्चे को रेस किया गया है उन पेरेंट्स के अंडर में जो जेनेटिकली अलग हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, तो हमें इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस पता चल जाता है. ठीक है. कि ये बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कितना सिमिलर है और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से कितना सिमिलर है. ठीक है. सो हमें पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इज डिफरेंट. अडॉप्शन स्टडीज से इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्विन स्टडीज कर रहे हो, मतलब अगर आप अडॉप्शन ट्विन स्टडीज कर रहे हो, तो आपको इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस मिलता है. और अगर आप सिर्फ ट्विन स्टडीज कर रहे हो, तो क्योंकि ये ट्विन्स एक ही जीन्स के हैं और एक ही इन्वायरमेंट में रहे हैं, तो बिल्कुल सिमिलर होंगे, इसलिए उससे आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है. ट्विन स्टडीज से हमें बेसिकली क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स के सेम जेनेटिक मेकअप होता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही होगा. ऐसे ट्विन्स जो अलग फैमिली में अडॉप्ट हुए हैं, अलग अलग फैमिली में अडॉप्ट हुए हैं, अगर इनका इंटेलिजेंस सेम है तो इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. सो ऐसे ट्विन्स जो अलग अलग एनवायरमेंट में थे फिर भी इनका इंटेलिजेंस सेम है, तो यानी कि इनका इंटेलिजेंस इज बिकॉज ऑफ देयर जीन्स. अगर इनका इंटेलिजेंस डिफरेंट है तो इट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट. सिमिलरली मान लो एक किसी एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा इज अडॉप्टेड एंड एक इज देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड. ठीक है. अगर दोनों का इंटेलिजेंस सेम है तो वो इन्वायरमेंट की वजह से है. अगर दोनों का इंटेलिजेंस डिफरेंट है तो इट इज बिकॉज ऑफ
genetics. ठीक है. Studies show that for children living in poverty, it did not matter whether they had good genes or not. The negative impact of the environment almost always played a greater role in their future success than their genes. सो स्टडीज से हमें पता चला है कि किसी बच्चे का कितना भी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्यों ना हो, अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहां बहुत पॉवर्टी है, जहां सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जिसको फिर उसके बाद एजुकेशन भी अच्छी नहीं मिली, तो उसके इन्वायरमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर रहा, चाहे उसके जीन्स कितने भी हाई इंटेलिजेंस के क्यों ना हो. ठीक है. सो ऐसे इससे हमें ये पता चलता है कि एक नेगेटिव इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जीन्स से कहीं ज्यादा होता है. आपके कितने भी अच्छे जीन्स हो, अगर आपका इन्वायरमेंट इज नेगेटिव, आपका वो जीन काम नहीं कर पाएगा. ठीक है. और ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास या वेल्दी घरों में रहे हैं, अगर उनमें अच्छे जीन्स हैं तो ये उनके फ्यूचर सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छे जीन्स थे उनके, और उसके बाद उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल गया, मतलब अच्छी वेल्दी फैमिली से थे तो अच्छा सपोर्ट मिल गया और जीन्स को ट्रिगर करने का, तो इसलिए इनकी फ्यूचर सक्सेस इनके जीन्स से बहुत ज्यादा डिटरमाइन हुई. ठीक है. With this we are done with bio particularly. इसके बाद you asked to start with research, right?